بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی حافظ قرآن لڑکی کا واقعہ سنانے والے ہیں جو کہ قرآن مسجد اور اسلامک کتابیں بیچا کرتی تھی اور ساتھ میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی۔ لیکن قرآن مسجد بیچتے وقت وہ ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس پر اتنا دردناک عذاب نازل ہوا، جسے دیکھ کر تمام گاؤں والے چلانے چیخنے لگے اور ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق آموز واقعے کو ہمارے ساتھ آخر تک ضرور سنیے گا، اور خاص کر وہ لوگ جو گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں فاطمہ میری سہیلی تھی اور دور دراز کی رشتے دار بھی تھی اور ہمسایہ بھی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اور حافظ قرآن بھی تھی۔ بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتی تھی، لیکن اس سے اس کا گھر نہیں چلتا تھا، کیونکہ جو بچے اس کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ اسے زیادہ پیسے نہیں دے پاتے تھے، اور اگر وہ زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرتی تو لوگ کہتے کہ قرآن کو پڑھا کر پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ پھر بھی جیسے تیسے اس کا گھر چل رہا تھا۔ اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا، لیکن آج ہم نے اسے جس حالت میں دیکھا ہم لوگ حیران رہ گئے۔ آخر ایسی بھی کیا بات تھی کہ اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب آیا تھا؟ اس کی حالت دیکھ کر ہم سب لوگ ڈر رہے تھے، کوئی بھی اس کے پاس جانے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسی حالت میں اس کی جان بھی نکل گئی پھر کیا ہوگا، کیا کریں گے، ان کا تو کوئی رشتے دار بھی نہیں ہے، پھر غسل کون دے گا؟ لوگ کسی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کب کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ یہ معاملات کافی خراب تھے۔ مجھے سب نے کہا کہ تم ہی اس کے رشتے دار ہو تو تمہیں ہی یہ فرض سر انجام دینا پڑے گا۔ اب میرا تو دل کہہ رہا تھا نہیں، میں اس کی رشتے دار نہیں ہوں، لیکن جب فاطمہ اپنی آرزو پر تھی تو تب میں یہ بات سینہ ٹھوک کر کہتی تھی کہ ہاں یہ میری ہی رشتے دار ہے۔ اب بری طرح سے میں پھنس چکی تھی، کیونکہ سامنے کا منظر تھا ہی ایسا۔ فاطمہ کے ہاتھ پاؤں آپس میں۔ فاطمہ اور میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ہم لوگوں نے صرف میٹرک کیا تھا، ہم لوگوں کو آگے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی بھی شادی ہو گئی اور میری بھی، اور پھر پتہ چلا کہ وہ بھی اس محلے میں رہتی ہے جہاں پر میں رہتی ہوں۔ اتفاق سے ہم لوگوں کا گھر بھی ایک دوسرے کے گھر کے ساتھ ہی تھا، بیچ میں ایک پلاٹ تھا، لیکن ہماری ہمسائی تو وہی لگتی تھی۔ اس کا شوہر غریب آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ وہ گھر میں بچوں کو قرآن مسجد کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ وہ لوگ اس محلے میں ابھی شفٹ ہوئے تھے اور میری بھی شادی اسی گاؤں میں ہوئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو میری ایک ساس ہی تھی جو اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میرا شوہر ایک بہت اچھا انسان تھا، وہ میری ہر بات مانتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ فاطمہ کے شوہر کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن رات کو ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آواز آتی تھی اور میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا بھائی کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ ہے؟ اس کی شادی کو 8 سال ہو گئے تھے، بڑا بیٹا اس کا 6 سال کا تھا۔ اب لڑنے کے کون سے دن تھے؟ لڑائیاں تو شروع میں ہوتی ہیں۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی تو کہنے لگی کہ حالات بڑے خراب ہیں، تمہارے بھائی کو ایک بیماری ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے شوہر کو۔ میں نے کہا کہ کیا بیماری ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ بہت زیادہ چڑچڑا آدمی ہے۔ اسی کے ایک دوست نے کہا ہے کہ اسے دماغی بیماری ہے جس سے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اور جہاں وہ مزدوری کرنے جاتا ہے وہاں بھی لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اسی لیے اسے زیادہ کام بھی نہیں ملتا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ جہاں تک مجھے پتا ہے، جتنی میں پڑھی لکھی ہوں اتنی ہی تم بھی پڑھی لکھی ہو، تو بتاؤ کہ ایسے لوگوں کو تو پاگل کہا جاتا ہے۔ مجھے لگا کہ وہ غصہ کرے گی، پر اس نے کہا کہ ہاں ایسے لوگوں کو پاگل ہی کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ یہ نہیں سمجھتے، بلکہ ایسے پاگلوں کی شادی کروا دی جاتی ہے کہ بیوی آئے گی تو ان کو ٹھیک کر دے گی۔ شروع سے ہی اس کے حالت ایسے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلوائے، پہلے بہتر تھے، پر اب تو یہ بہت ہی
ही गुस्सा करने लगा है। इसको सीधी बात भी कहो तो इसे उल्टी सुनाई देती है। बच्चे भी कहते हैं, अम्मी अब्बा आपसे हर वक्त लड़ते क्यों रहते हैं? मैं तो परेशान हो गई हूँ। घर में बच्चों को कुरान मस्जिद पढ़ाती हूँ। कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। कुछ लोग तो मुंह पर बोल देते हैं कि पैसे किस बात के। और तुझे पता है यहाँ पर तो 2-3 मदरसे हैं जिसमें हर दिन 100-100 बच्चों को मुफ्त में कुरान पाक पढ़ाते हैं, तो फिर लोग मुझे पैसे क्यों देंगे? मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो वहाँ पर मुफ्त में कुरान पाक पढ़ाते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो पहले से ही अमीर लोग हैं और इन दोनों के यहाँ औलाद नहीं है। अपनी मरहूमी को दूर करने के लिए इन्होंने ये काम शुरू किया है और ये तो खुद भी पढ़ाती नहीं है, लेकिन तू तो माशा अल्लाह हाफिज़े कुरान है ना? तो इसने कहा कि हाँ तब ही तो ये काम शुरू किया था, लेकिन कुछ नहीं मिलता। मैंने इसे कहा कि मैं अपने दोनों बच्चों को तेरे पास भेजूंगी, एक तो अभी छोटी है, पहले वाले को भेजूंगी और मैं तुझे पैसे भी दिया करूंगी। वो कहने लगी कि तू पैसे ना भी दे तो भी मैं तेरी दोस्त हूँ और तू मेरी रिश्तेदार भी है और हमसाये भी है। तेरे साथ तो 3-3 वास्ते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? पैसे मेरा घर कैसे चलेगा? दिन ब दिन इनकी आमदनी कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और आमदनी कम होती जा रही है। तो खुद सोच ये कितनी बुरी सूरत हाल है। ऐसे में क्या होगा? बात तो इसकी ठीक थी, लेकिन मैं इसके लिए क्या कर सकती थी? हर बंदे के अपने ही मसले होते हैं। हमारे हालात भी तो कुछ अच्छे नहीं थे, पर एक दिन मैं ये देख कर हैरान रह गई। वो कुरान पाक और इस्लामी किताबें बेचने के लिए अपने घर में ही छोटा सा दुकान खोल देती है। मुझे मेरी बेटी ने बताया, फातिमा आंटी के घर में दुकान लगी है। मैंने कहा, कल तो इससे मिली हूँ, इसके घर में कहाँ दुकान लगी थी? तो मैं टाइम निकाल कर इसके घर में चली गई और मैंने देखा तो वो सच में छोटी सी दुकान थी जो कुरान पाक और इस्लामी किताबों की थी। मैंने इससे पूछा कि ये दुकान खोलने के पैसे कहाँ से आ गए? तो वो कहने लगी कि इन्होंने कुछ पैसे दिए, तो मैं सोची बच्चों को कुरान पाक इस्लामी तालीम देती हूँ तो क्यों ना मैं किताबें रख लेती हूँ। मेरे पास से ही कुरान मस्जिद या और सब किताबें खरीद लेंगे तो कुछ मेरे घर के हालात सुधर जाएंगे। फिर मैंने कहा, कितने पैसे थे तुम लोगों के पास? तो कहने लगी कि हाँ वो इनकी कमेटी निकली थी। मैंने इसे कहा कि चलो मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी कल ही तो परेशान हो रही थी और कह रही थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, और देखो अल्लाह ताला ने पैसों का इंतजाम बना दिया और मुझे भी मेरे बेटे के लिए एक नूरानी कायदा खरीदना था। मैं आज ही शाम को मार्केट जाने वाली थी, लेकिन अब तुम्हारे पास ही किताब खरीद लेती हूँ। मैंने इसके पास से अपनी बेटे के लिए किताब खरीदी और अपने घर चली आई। चनाचा शाम को मैंने जब अपने शोहर के सामने खाना रखा तो इसे ये बात बताई कि फातिमा और इसके शोहर ने अपने घर में ही इस्लामी किताबों का दुकान खोला है। मेरे शोहर ने कहा कि ठीक तो है, लेकिन इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा, कह रहे थे कि कमेटी निकली है। मेरे शोहर ने कहा कि ठीक तो है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फातिमा के हालात पहले से बेहतर हो गए। अब खुशी खुशी जिंदगी के दिन गुजार रहे थे। तकरीबन 1 साल बाद अचानक रात को रोने और चिल्लाने की आवाज आई। इनके दोनों बेटे जोर जोर से रो रहे थे। हम दोनों मियाँ बीवी घबरा कर उठे। मेरे शोहर ने कहा, ये तो फातिमा के बेटे रोने की आवाज आ रही है। हम दोनों इसके घर की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जब हम इसकी तरफ गए तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। इसका मतलब था शायद मुनीर घर से जा चुका था। मेरे शोहर ने अंदर जाकर देखा कि चोर का मामला तो नहीं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। इसने मुझे कहा कि मैं मुनीर को जाकर देखता हूँ, लगता है कहीं आस पास गया है, तुम जाकर बच्चों को देखो। तो बच्चे भी इस तरह से डरे बैठे थे जैसे इन्होंने
इन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। मुझे भी इन्हें देखकर डर लग रहा था। मैंने कहा कि क्या हुआ है, क्या बात है? तो कहने लगे क्या हुआ है, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? तो कहने लगे कि कुछ हो गया है। मैंने कहा कहाँ है तुम्हारी? तो इन्होंने कहा अपने कमरे में। इस तरह इशारा किया जैसे इस कमरे में इसकी माँ नहीं बल्कि कोई भूत हो। मैं परेशान हो गई। मैंने इनके आंसू साफ किए और इनको पानी पिलाया। मैंने कहा आओ मेरे साथ तुम्हारी अम्मी को देखते हैं। तो वो फौरन पीछे हट गए। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप खुद जाएं, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मैं परेशान हो गई। मैं इस कमरे की तरफ बढ़ी। ये फातिमा का बेडरूम था जहाँ पर वो अपने शोहर के साथ सोती थी। मैं इसके कमरे में कभी भी नहीं गई थी। वो मुझे हमेशा बाहर ही बैठा देती थी। मैं जब कमरे के अंदर गई तो मुझे दूर से ऐसा लगा कि फातिमा अपने बिस्तर पर लेटी हो, लेकिन अपने दोनों हाथों को इसने ऊपर उठा रखा था जैसे दोनों हाथों से आसमान के तारे गिन रही हो, और टांगे भी ऊपर रखी थी, यानी कि दोनों घुटने आसमान की तरफ थे। इस तरह से तो कोई भी नहीं लेटता, लेकिन ये दोनों हाथ क्यों हवा में गए हुए थे, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। खैर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी और जब मैंने इसे बुलाया फातिमा फातिमा, तो वो हिल ही नहीं रही थी, जवाब ही नहीं दे रही थी, बिल्कुल ठस से मस नहीं हो रही थी। जैसे ही मेरी नजर इसके चेहरे पर पड़ी, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं चिल्लाई नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं बुरी तरह से चिल्लाई और चिल्लाती चिल्लाती बाहर भागने लगी कि मेरे शोहर ने मुझे पकड़ लिया और कहा क्या हो गया? मैंने कहा ओ फातिमा फातिमा फातिमा, कुछ हो गया है। इसने कहा कि क्या हो गया है? मैंने कहा मुझे पता नहीं, खुद ही जाकर देख लो। जब इसने देखा तो वो भी हैरान रह गया। इन्होंने फौरन रेस्क्यू वालों को कॉल की। जब वो आए तो वो भी हैरान रह गए। रेस्क्यू वाले अंदर चले गए और इन्होंने किसी को भी अंदर जाने से मना कर दिया और अंदर आ गए। मर्दों को बाहर मेरे शोहर ने हैंडल कर लिया। मैंने भी औरतों को ये कहानी सुनाना शुरू कर दी। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी हालत देखकर वो भी हैरान हो गए। इन्होंने कहा कि क्या तुम सच कह रही हो? मैंने कहा हाँ, मैंने तो यही देखा है। खैर फातिमा के बच्चों को और अपने बच्चों को हम लोगों ने मोहल्ले वालों के घर पर छोड़ा, क्योंकि इसकी बेटी बेटा 8 या 10 साल की थी। इसके पास चारों बच्चों को छोड़ा और इसको कहा कि इन बच्चों को कुछ खिला पिला देना और ख्याल करना और इनको वक्त पर सलाह देना। इसने ऐसा ही किया। अब घर में औरतें थी, फातिमा थी और बाहर बाकी लोग ठहरे थे, लेकिन इस सारे मामले में इसका शोहर कहीं नजर नहीं आ रहा था। रिक्शा वाले बाहर आए और इन्होंने हमें आकर ऐसी बात बताई कि हम हैरान रह गए। अब कहीं जाकर मुनीर भाई भी नजर आ गए। रिक्शा वाले चले गए। इन्होंने कहा कि अब हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, अब मामला हमारे हाथ से निकल गया है, आप अस्पताल लेकर जाइए, वही आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग मुनीर भाई की तरफ देख रहे थे कि इनको अफसोस करें और कहें कि ये सब कुछ कैसे हो गया, हमें तो समझ नहीं आ रहा। खुद ही बोल पड़े। इन्होंने कहा कि ऐसे औरतों के साथ यही होता है, आप लोग परेशान ना हो, मैं अपने कुछ रिश्तेदारों को फोन करता हूँ, वो मामला संभाल लेंगे, आप लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। अरे अगर किसी की बीवी बदकार होती है, बेवफा करती है, इसके साथ झूठ बोल रही होती है और इसके साथ कुछ बुरा करती है, तो तब भी इसका शोहर इस तरह से नहीं करता कि इसके साथ यही होना चाहिए था। और मुनीर भाई की बीवी फातिमा ने इनके साथ ऐसा क्या किया था कि घर को संभालती भी थी, घर में पैसे भी खर्च करती थी। इसने तो इनकी जिंदगी का हुलिया भी बदल दिया था और नेक हाफिज
हाफिज कुरान भी थी। बच्चों को कम पैसे में कुरान की तालीम दिया करती थी, फिर भी वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को फोन कर दिया और फिर अंदर जाकर इस कमरे में गए जहाँ पर फातिमा पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद बाहर आए और कहने लगे कि देखो ये होता है, कि देखो ये होता है। अंजाम? हमने कहा किस बात का अंजाम? तो इस बात का जवाब ही नहीं दिया। सुबह की रोशनी फैलते फैलते फातिमा के कुछ रिश्तेदार आ गए। मुनीर भाई की कुछ बहनें थी और देवर थे। सारे रिश्तेदार फातिमा के ससुराल वाले ही थे। जब इन्होंने ये मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गए और इन्होंने कहा कि हमसे तो ये सारा तमाशा नहीं देखा जाएगा, ना बर्दाश्त किया जाएगा, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। मुनीर को अफसोस कहते हुए वहाँ से निकल गए और हम लोग हैरान रह गए। रिक्शा वालों ने इन्हें आके बताया था कि फातिमा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो इस दुनिया से जा चुकी है। इसलिए सारे रिश्तेदारों को भी बुला लिया गया था। किसी ने मशवरा दिया कि मुफ्ती साहब को बुला कर लाया जाए, वो कोई दम दरूद करे, शायद कुछ असर हो। लेकिन मुनीर ने इनकार कर दिया और इसने कहा कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, ये मामला आप लोगों की सोच से भी ऊपर है। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्होंने अजीब सी हरकत की। इन्होंने इस दुकान को बंद कर दिया। फातिमा मर गई, वो इस दुनिया से चली गई। चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, कोई नदामत नहीं। और मेरे शोहर ने मुझे कहा कि मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है, मुझे लगता है ये आदमी पागल हो गया है और इसने ही अपनी बीवी के साथ ये सब कुछ किया है। लेकिन रिव्यू वाले ने बताया था कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं है, बल्कि इनको तो मामला कुछ समझ में नहीं आया था कि असल में हुआ क्या है। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। रिश्तेदार जा चुके थे, अब सारी औरतें मेरी तरफ देख रही थी कि तुम भी तो रिश्तेदार हो, तुम्हारी तो इसके साथ दोस्ती भी थी, तुम ही इसको गुस्ल दो। मैंने कहा मैं 1 मिनट के लिए वहाँ पर खड़ी हुई थी, मेरी अभी तक अपनी हालत ठीक नहीं हुई, मेरे हाथ पाँव अभी तक काम नहीं कर रहे और तुम लोग कहते हो कि गुस्ल दो। मैं गुस्ल नहीं दे सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। सब औरतें मुझको आकर बारी बारी यही कह रही थी। शायद इनको लगता था कि ये काम मैं ही कर सकती थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। फातिमा की जो हालत थी, मैं इसकी शक्ल 1 मिनट के लिए भी नहीं देख सकती थी। लेकिन फिर मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ा और मैंने एक औरत को अपने साथ बुला लिया। ये ऐसी औरत थी जिसने कुछ दिन पहले अपने सारे खानदान को खो दिया था। इसके लिए किसी बात का डर नहीं था और इसको किसी किस्म का अफसोस भी नहीं था। इसने मेरा साथ दिया और हम लोगों ने किसी तरह से इसको गुस्ल दिया। लेकिन मामला ऐसा था कि फातिमा के हाथ पाँव सीधे नहीं हो रहे थे और इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, बुरी तरह से हंस रही थी और ऐसे लगता था कि जैसे हंस रही थी और किसी ने इसे वहीं पर रोक लिया और इसकी मैयत बिल्कुल सख्त हो गई। बड़ी मुश्किल से इसको दफनाया गया। सारे गाँव के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। आखिर फातिमा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो इसको ऐसा दर्दनाक अजाब आया था? एक औरत बोली, वो तो नेक हाफिज कुरान औरत थी, इसने मेरे बच्चों को कम पैसों में कुरान पाक की तालीम दिया करती थी और इसकी दुकान से उधार किताबें भी लिया करती थी और उधार पैसों के लिए भी मुझे फातिमा ने कभी परेशान नहीं किया। कुछ देर खामोशी के बाद गाँव के सब लोगों ने सोचा कि इसका राज मुनीर भाई ही बता सकता है। गाँव के सारे लोग मुनीर भाई के पास चले आते हैं। जब सब लोगों ने मुनीर भाई से पूछना शुरू कर दिया तो मुनीर भाई रोने लगे। इसके बाद मुनीर भाई ने जो कुछ बताया इसे सुनकर तो सारे गाँव वालों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मुनीर भाई ने बताया कि मेरी बीवी ने एक हाफिजा कुरान जरूर थी, लेकिन जब इसने इस्लामी किताबों का दुकान खोला तो शुरू में तो कुरान पाक को ठीक से रखती थी, कुरान मस्जिद की इज्जत और एहतराम करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसने कुरान पाक को इज्जत व एहतराम करना छोड़ दिया। जब वो मार्केट से कुरान शरीफ खरीद कर लाती तो घर में कहीं पर किसी तरह कुरान शरीफ को रख दिया करती।
करती थी। मैंने इसे बहुत बार समझाया कि कुरान पाक की बेहरमती मत करो, नहीं तो तुम्हारे पर अल्लाह का अज़ाब हो सकता है। तो वो मुझसे बोलने लगी कि ये तो मेरा हर दिन का काम है, अब हर दिन मैं यही काम करती रहूं। मैं इसे अच्छे से रोज रखने लगती तो मैं कब दुकान खोलूंगी, कब बच्चों को पढ़ाऊंगी। एक दिन तो इसने हद ही कर दी, इसके हाथ से कुरान पाक नीचे गिर जाता है। तब मैं इसे बोलता हूँ कि ये तो तुमसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया, तुम अल्लाह से माफी मांगो, जाओ नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह से माफी मांगो। तो फातिमा झट से बोली, ये तो मेरे साथ हर दिन होता रहता है, तो क्या मैं हर दिन ऐसे ही करती रहूं? तो फिर मैंने कहा, तुम कुरान पाक के साथ ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तो वो मुंह फेर कर वहाँ से चली गई। यही वजह है कि इसको इतना दर्दनाक अजाब आया। गाँव वाले ये सुनकर तौबा अस्तगफिरुल्लाह कहने लगे और सब ने भी अल्लाह से माफी मांगना शुरू कर दी। प्यारे नाजरीन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो ऐसी गलती ना करना, छोड़ दो, अल्लाह से माफी मांग लो। बेशक अल्लाह रहीम व गफूर है। और कुरान शरीफ और इस्लामी किताबों को अपने घरों में अच्छी जगह पर रखें और शहीद कुरान पाक को अच्छी जगह दफना दें। नाजरीन, आज का वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाकयात, सबक, अमवास, कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।